Here's Suaspar to start off. Mehdi on strike straight away, looking for the switch. Missed out. Chance. And that has been missed by the wicketkeeper. Leg buys. In fact, the buys. Buy signal given by the umpire. Is it Arjun Parab, the batsman? Twelfth man of Mandrem, please be in the com box. Reverse sweep, up in the air, and put down. A simple chance, and that has been put down. It's one right now. That two came off a bye. That's big. And the fielder taken. Amir Gadekar taking the catch. And that's out. It's 1 for 1. Mandre boys have been struck early. Rudresh gone without troubling the scorers. And the new man in is Vittal. 1 for 1. Oh, good delivery, excellently bowled, taking the ball away. Suhas Pawar with all his variations. Again, missed out again. Wicketkeeper Raju is having some clueless bit of worrying signs behind the stumps. Swing missed. Dot delivery. Dot delivery to end the over after completion of 1. It's 1. 1 for 1 after 1. Mandrem boys, Mandrem. So far, the expensive player in this tournament, that is Mahesh Bayadkar, has scored 2 and 3. That is in total 5 runs. Can he provide that big expensive player tag in this particular game? Here's Amir. Full toss, throw into the bat. And that will just be a single. Score moves on to 2. Mahesh Bayadkar with that single.
Trying to cut that one, missed out. Dot delivery. Excellently bowled again. Well, what a game. The previous one, where it was 5 runs required. And first one, dismissal. Then 2 dot balls. Then a single. And then Darshan Bandekar with that boundary to finish off the game. That's up in the air. In the gap, Shubham Chandroji underneath, and will just be one to get Aryan off on the running. In fact, Vittal off on the running with that single. Score moves on to 3. 3 for the loss of 1. Full toss. Missed out. Dot delivery. Excellently bowled. Another dot ball. That's gone. That's out. Wicket falls. Hits the timber. And the zingers lit up. There's the second wicket down. It's 3 for 2. Mandare boys in deep, deep trouble. 3 for 2. New man in Kedar Sawant. There won't be any more music of the DJ, as it's already code of conduct that has been implemented due to the ZP elections. Excellently bowled again. Nicely played away from his body. Will get on the mark with a single. Does Kedar? Just a single taken. Score moves on to 4. 4 for the loss of 2 after completion of 2 overs. Mandarim boys, Mandarim. Suhas Par will continue to bowl this through over where all the fielders are inside the 30-yard ring. 4 for the loss of 2 after 2. Just to apply some more breaks, Suhas Par has again been reintroduced. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. You can just go online, jump on the link and see this game from wherever you are. Reverse sweep attempted, missed out, dot delivery. Again, direct hit, and seems like the third umpire will come in the picture. Raju finding some trouble behind the stumps, maybe getting his webbing, trying to take the run, and the third umpire has been referred to. So OUT, that's out. Third wicket falls. And it's Vittal who has been run out. Unfortunately, it's 4 for 3.
New man in, Mohammad Azhar. All the way from Hyderabad. And let's see if this Hyderabadi Tadka can get over Suhas Par. Man on strike, Mohammad Azhar. Pulled away. And pulled away into the fence for 4. Gets off the mark with the boundary. Does Mohammad Azhar. Score moves to 8. 8 for the loss of 3 wickets. Need a partnership, these two, if they are in chance of getting a big total on the scorecard. Currently, this being the 3rd over, the Dhruv over. Outside the off stump, and that will be a dot ball. Reverse sweep. And that's gone all the way for 6. What a hit that is. Over the points head for 6. Score moves to 14 with that maximum. Looking for some balls. For the loss of 3 wickets. This being the last delivery of the Dhruv over. That's up in the air and the fielder takes it. Slower delivery, completely misguiding with the pace. And that's gone. 14 for 4 after 3. Mandrim boys, Mandrim slip into more trouble now. Lakshman from the opposite end. 14 for the loss of 4 wickets after 3. Mandrim boys, Mandrim. New man in, Samarth Gawas at the non-striking end. Nicely played. That has been clobbered and clobbered for a boundary by Kedar Sawant. Excellently played. Score moves on to 18. 18 for the loss of 4 wickets. They still have Samarth Gawas in the middle. Anything can happen. He certainly can change the course of the game in matter of 2-3 overs. An over as well. Most of the times I've seen, to be precise, last January, when we were in Amona, CM Pramod Sawant came. I'll let you know about that after this delivery. That has been nicely played over the man at backward point. That's gone for 4. Switching at the right time. Score moves to 22 with that boundary. 22 for 4. Excellently played by Kedar Sawant. He's batting on 9 of 5. Samarth Gawas has just joined him. We're talking about Samarth Gawas. Well, 40 runs were required in 4 overs in a leather ball game in Amona.
and CM came and he was in a hurry to leave to other places. It was the 26th January. Up and over the infield, and that will again go for a boundary. 42 years boundary. Over the keeper's head. Score moves to 26. 26 for 4. In that matter of over, when 40 runs were required in 4 overs, Samarth Gawas smashed 5 maximums in 1 over and got the 10 runs in the next 3 deliveries. So that's how powerful he is, whether it's leather ball or tennis ball. Reverse sweep. This time, a big loud call from his partner at the other end. Dot delivery. 26 for the loss of 4 wickets. Mandrim boys Mandrim, who are put into bed by the giant fighters Agarwada. Agarwada with 1 win. Mandrim searching for a win. Nicely bowled. And he will take the single. Gets the single. Score moves to 27. 27 for 4. Exciting times tomorrow as the first eliminators will take place and then the semi-finals. Good delivery, excellent delivery to end the over. At the halfway stage, it's 27 for 4. Mandrim boys Mandrim, after being put into bed by the giant fighters Agarwada. It will be change in voice. It will be Ashok Naik sir with you in the com box. थैंक यू श्याम, धन्यवाद। 4 ओवर आधे ओवर समाप्त हुए और 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 लॉस ऑफ 4 विकेट। अमीर गडेकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। 14 पर खुद के व्यक्तिगत केदार सावंत, समर्थ गावस अब जिनको खाता खोलना है और 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई 27 रन 4 ओवर की समाप्ति। ये गेंद इस बार बहुत अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर एक डॉट गेंद के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के पास। ऑफ साइड पर एक बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर। दिन रात का आज का अंतिम मुकाबला इन दोनों के बीच का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली, कट होकर बाहर की तरफ और फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5वां ओवर शुरू हो चुका है। स्कोर रुका हुआ 27 पर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, फिर इस बार थोड़ी नीची रही गेंद। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ विकेट कीपर के साथ। गेंद कलेक्ट होती हुई और वापस एक बार फिर से गेंदबाज अमीर के हाथों में। ओ, बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार। इस बार थोड़ा उछाल ज्यादा मिला, पिछली गेंद थोड़ी नीचे रही, ये थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन है, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग है। ये दो नजदीक फील्डर है, एक मिड ऑफ है, एक कवर पॉइंट है, एक थर्ड मैन। आमिर की अगली गेंद कट गया। इस बार ऑफ साइड पर फील्डर है मौजूद। ओहो, रन के लिए निकले, देखना होगा। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद स्कोर एक सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचा। माफ कीजिए, जो रन लेना चाहते थे वहीं पर बिल्कुल जो कि फील्डिंग के साथ रुक चुके थे,
तो फिर से एक बार आमिर अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन पर फील्डर। मेडन ओवर की समाप्ति, पांचवा ओवर जो मेडन ओवर अमीर गड़ेकर का, और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर वहीं पर रुका हुआ 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज के तीसरे दिन रात का जो श्री ग्रुप अंतिम मुकाबला चलता हुआ मांद्रेम बॉयज मांद्रेम और जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा, इन दो टीमों के बीच में। लगातार 2 हार का सामना करना पड़ चुका है मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम, लीग का अंतिम मैच खेल रही है। तो जायंट फाइटर्स की अगर बात की जाए तो 1 जीत 1 हार, ये मैच उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने दूर वाले छोर से, जो कि छठे ओवर की शुरुआत होती हुई समर्थ गावस और केदार सावंत। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं लक्ष्मण। तो थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके और एक बार धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण नाइक। इस बार खींचकर खेला हुआ शॉट, गेंद हवा में, मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई 5वां विकेट चला गया टीम का। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर अंबाजी कोनाडकर केदार सावंत का साथ देने के लिए। आज समर्थ गावस बहुत जल्दी एक बड़े शॉट के लिए निकले थे, शायद पिछला और मेडन रहा था तो सामने समर्थ पर थोड़ा सा जो कि बड़े शॉट के लिए दबाव आ गया, और वही कोशिश रही थी, लेकिन कोशिश ही रह गई। और देखना होगा फिलहाल अंबाजी स्ट्राइक पर सामना करेंगे लक्ष्मण नाइक की गेंदबाजी का। अच्छा शॉट, सीधा कवर पॉइंट पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, और बिना खाता खोले वापस 0 पर अंबाजी, छठे विकेट का पतन हुआ। एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा कवर पॉइंट पर सुहास पवार ने, अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डिंग भी बहुत चुस्त थी, स्फूर्तिली, और कैच को पकड़ते हुए और एक विकेट चला गया। 27 लॉस ऑफ 6 विकेट। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर न्यू बैटर मैदान पर बबल सावंत, ऑन हैट्रिक बॉलिंग बार पर लक्ष्मण नाइक। 27 रन 6 विकेट पर खेल जारी है छठे ओवर का। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। देखना होगा इस आने वाली गेंद पर क्या होता है। अपने बॉलिंग बार पर तैयार लक्ष्मण नाइक, और सामने है बबल सावंत। हैट्रिक की गेंद, ओ ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, एक फुलर लेन की गेंद, ऑफ साइड पर निकले थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज को बीट करते हुए, विकेट कीपर को भी थोड़ी सी परेशान करते हुए गेंद, और वापस एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट टर्म पुल, गेंद खड़ी हो गई, अपने फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका मिला, और इस ओवर में लक्ष्मण नाइक और एक सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए
27 total score, loss of 7 wicket. बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर ऋषिकेश गावड़े। शानदार स्पेल रहा लक्ष्मण नाइक का। इस ओवर में अब तक 3 विकेट हासिल करते हुए 7 विकेट 27 पर। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर कट होकर बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में। पिछला ओवर जो मेडन ओवर रहा था वहीं पर थोड़ा सा बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ गया, वहां पर विकेट को बैठे समर्थ गावस और उनके आउट होने के बाद और 2 धक्के लगे टीम को। मांद्रिम बॉयज, मांद्रिम क्रिकेट टीम। अल्टी पल्टी की कोशिश और एक मेडन ओवर। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ। 2 विकेट चटकाए, इस 3 विकेट चटकाए इस ओवर में लक्ष्मण नाइक ने। बहुत ही शानदार स्पेल और खेल 6 ओवर का समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर रुका हुआ 27, लॉस ऑफ 7 विकेट। आखिरी 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से सुशांत उर्फ राजू केरकर। 7वें ओवर की शुरुआत, लगातार 2 ओवर मेडन ओवर गेंदबाजी जॉइंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम की ओर से। कट के इस बार एक अच्छा शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर दूर है, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरा रन लेते हुए। और बड़ी देर के बाद, लगभग 12 गेंदों के बाद 2 रन बनते हुए स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा 29 पर पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी। सुशांत केरकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार थोड़ा सा मिस टाइम शॉट गेंद हवा में, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर से दूर। और फिर से एक बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज ऋषिकेश गावड़े और उन्हीं के साथ केदार सावंत, जो एकमात्र बल्लेबाज 17 पर खुद के व्यक्तिगत 16 गेंदों का सामना करते हुए अब तक बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बड़ी देर के बाद गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। थर्टी 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर और अपने आप को जज किया, बैलेंस किया, कैच को पकड़ा लॉन्ग अप पर, सफलता मिलती हुई 8वां विकेट चला गया मांद्रिम बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 34 रन 8 विकेट पर।
नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए प्रवीण सावंत, सुशांत तौर पर राजू केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद नीचे बह रही, थोड़ी सी सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते राजू धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। 7वां ओवर, पिछले 2 ओवर लगातार, मेडन ओवर इस ओवर में एक चौका लगा। आने वाला 1 ओवर अभी भी बाकी है, जो आखिरी ओवर पहले इनिंग का। अच्छा शॉट और गेंद चलेगी डीप लॉन्ग ऑन से मारेका से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए 6 रन बने स्कोर के खाते में। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 40 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 40 रन 8 विकेट पर, लास्ट ओवर टू गो। एक 2-3 शॉट आखिरी ओवर में चाहिए अभी भी मांद्रेम बॉयज, मांद्रेम क्रिकेट टीम को देखना होगा। एक बहुत ही शानदार शॉट जो आखिरी गेंद पर लग चुका है। बल्लेबाजी में प्रवीण सावंत के जो 6 पर, केदार सावंत बल्लेबाजी कर रहे 17 पर। एकमात्र सफल बल्लेबाज। और देखना होगा अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं सामने दूर वाले छोर से। अभिषेक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अभिषेक दामाजी वो आ चुके बॉलिंग वार पर। अंतिम ओवर, लास्ट ओवर टू गो। स्कोर 40 रन 8 विकेट पर। थोड़ी नीचे रही गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद एक डॉट गेंद के साथ अभिषेक शुरू करते हुए अपने गेंदबाजी को। थोड़ी सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कटका इस बार शॉर्टेड मैन पर, फील्डर श्वास पवार गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 40 पर। अंतिम ओवर आखिरी और 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर। देखना होगा जब तक डिप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, गेंद को फील्ड करते, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा 41 पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके प्रवीण सावंत, जिन्होंने एक शानदार लॉन्ग ऑन पर पिछले ओवर में छक्का लगाया है। इस बार खेला गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ा 42 पर। आखिरी ओवर जारी है और अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जाते हुए अभिषेक दामाजी। कट का इस बार शानदार शॉट, बैकफुट पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, डीप पर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, गेंद को उठाते फील्ड करते, पहला रन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन के साथ तीसरे के लिए पलटे। देखना होगा और 1 रन बनेगा, 3 रन चौथे के निकले, क्या 5वां रन बनेगा? नहीं, बिल्कुल, जो कि 4 रन बन गए स्कोर के खाते में। 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए मांद्रेम बॉयज, मांद्रेम क्रिकेट टीम को, और इस 4 रन के साथ टोटल पहुंचा 46 रन। लास्ट बॉल टू गो, लास्ट बॉल टू गो। क्या बड़ा शॉट होगा आखिरी गेंद पर? ओ, अल्टी पल्टी की कोशिश, सिंगल तो मिलेगा स्कोर में और इसी के साथ और 1 विकेट चला गया, तो 9वां विकेट चला गया। टोटल हो चुका है 47। 8 ओवर का मैच, 48 गेंदें, 48 रन। मैच को जीतने के लिए जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को एक छोटा सा ब्रेक, दूसरी इनिंग की शुरुआत। कॉम बॉक्स में आवाज जय भोसले की।
48 गेंदों में जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता। रन बॉल ये मुकाबला है। अगर बात की जाए तो मांद्रेम बॉयज़ इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम को अगर ये मैच जल्दी ख़त्म कर देते तो उनके रन रेट में इजाफा हो सकता है। उनके दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर सुहास पवार और उनके साथ प्रजय मलिक ये जोड़ी, और गेंदबाजी के लिए मोहम्मद अजहर ये गेंदबाज। 48 रनों की आवश्यकता 48 गेंदों में। पहली गेंद छोटी गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। एक रन तो जरूर निकलेगा। डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करी, लेकिन गेंद बल या विकेटों पर नहीं लगी। एक रन के साथ अपना खाता खोला है। और आज के रजनी का ये अंतिम मुकाबला। जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम को इस मुकाबले को जीतने के साथ साथ अपने रन रेट में सुधार लाने की कोशिश करनी है, और इसके लिए उनको इस मैच को जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जाते जाते इस लो स्कोरिंग मुकाबले में जीत हासिल करना ये सपना है मांद्रेम बॉयज मांद्रेम टीम का। ओ ये प्रज्वल मलिक बल्ले को लग गई है गेंद, छोड़ देते तो वाइड हो जाती, लेकिन आखिरकार बल्ले को लगने के बाद ये फेयर डिलीवरी हो गई। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार खेल दिया है, लगभग गेंद निकल रही फाइन लेग की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका प्रजय मलिक के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए प्रजय मलिक, और टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। हल्की हल्की हवा चल रही है मैदान पर, और जानते हैं दर्शक भी इस मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिलहाल तो लो स्कोरिंग का ये मुकाबला है, और आगरवाड़ा टीम के दृष्टिकोण से ये मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण। और फिर एक बार उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो पूरा हो जाएगा। एक ही रन के ऊपर ही संतुष्टि सुहास पवार ने ना कहा। दूसरे रन के लिए 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। पीछा कर रही है 48 रनों का, और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं सुहास पवार, जिन्होंने आज की पूरी छोटी गेंद, बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का सुहास पवार के बल्ले से निकलता हुआ टोटल पहुंचा अब 12 रन स्कोर बोर्ड पर। काफी दूर गेंद निकली है, और मोहम्मद अजहर जो है क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। आधे पिच के ऊपर गेंद डाल रहे हैं, और बल्लेबाज बार बार लगातार उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। एक छक्का एक चौका इस ओवर में अब तक लग चुका है, और इस बार खेला सीधा डीप में। खिलाड़ी प्रवीण सावंत ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते भी जोड़ता हुआ 1 रन के साथ यहाँ पर पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर 48 रनों के जवाब में। महेश भाईडकर अपना कोटे का पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी की मोर्चे पर, और इस बार उठाकर खेला हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर मिड विकेट के नीचे। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी सुस्ती फील्डिंग देखी, वैसे दूसरे रन का कॉल किया, और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए टोटल अब पहुंचा है 15 रन बगैर किसी नुकसान पर। देखना है मैच कब किस ओवर में समाप्त होता है, या मैच में ट्विस्ट बनता है। इस बार उठाकर खेला हवा में जरूर, कैच की संभावना और आउट। मैच में ट्विस्ट बन चुका है, और यहाँ पर सुहास पवार आउट होकर निकले पेविलियन की ओर। 15 रन पर ये पहली सफलता। बड़ा हिट लगाने गए और पॉइंट पर बहुत शानदार कैच को अंजाम दे दिया, और पहले विकेट का पतन हो चुका है 15 रन पर। 48 रनों का जवाब दे रहे हैं। 1 ओवर और 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है।
सुहास पवार ने बनाए इस मुकाबले में। 5 गेंदों का सामना किया, 10 रन, उसमें एक छक्के का समावेश। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जरूर, लेकिन अब देखना है क्या यहाँ से वापसी करते मांद्रेम बॉयज, मांद्रेम की टीम, या इस मुकाबले को जीतकर जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टेबल में यहाँ पर उल्टा पुल्टा कुछ होने को देखती है। देखने वाली बात जरूर होगा। नए बल्लेबाज मैदान पर साहिल कामड़ी। महेश वाइडकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। कल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन, कल के दिन में 5 मुकाबले खेले जाएंगे। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई। अब मैच थोड़ा सा खींचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 13 रन निकले थे और इस ओवर में अब तक 2 रन निकले और एक विकेट भी यहाँ पर निकला है। इस बार खेला कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं प्रजय और साहिल कामड़ी। और रिवर्स खेला हुआ इस स्ट्रोक पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, झपटा मारते, थोड़े से फिसले जरूर लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। 1 रन और खाते में और लगभग दूसरा ओवर समाप्ति की कगार। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। आखिरी गेंद अभी भी बाकी इस ओवर की। टोटल रन संख्या 17 रन स्कोरबोर्ड पर। ये ओवर अच्छा घटा है, सिर्फ अब तक 4 रन खर्च हुए हैं और एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है महेश वाइडकर को। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद, यहाँ पर 1 रन जरूर। डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, कवर बैकअप अगर ना होता तो गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती। दूसरा रन भी पूरा हो गया। अब 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 19 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। नाइनटीन 19 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। मोहम्मद अजहर गेंदबाजी के लिए आए। प्रजय ने इसको खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, डीप फाइन लेग पर, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर लगी नहीं उस तरह की। 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मोहम्मद अजहर, इस बार साहिल साबदा करेंगे। ओ लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही शानदार कैच को अंजाम दे दिया और वापस जाना पड़ रहा है। काफी तेज आ रही थी गेंद और इतनी ठंडे में इतनी तेज शॉट को कैच में तब्दील करना मुश्किल, लेकिन खिलाड़ी ने लाजवाब कैच पकड़ा है। वापस जाना पड़ रहा है साहिल को। दूसरा विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ। प्रवीण सावंत हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने काफी नाराज होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। नए बल्लेबाज मैदान पर शुभम
दाखिल होते हुए ऐसा लग रहा था ये मुकाबला जल्दी समाप्त करेंगे, थोड़ा सा रन रेट में सुधार लाने के लिए, लेकिन सुहास पवार आउट होने के बाद थोड़ा सा मैच और खींचता हुआ नजर आ रहा है। चोटी गेंद, इसके ऊपर एक बड़ा प्रहार। ओ बहुत बढ़िया कैच, शानदार कैच, काबिल तारीफ यहाँ पर फील्डिंग इस खिलाड़ी द्वारा। अथर्व खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया कैच, शरीर का सही संतुलन लगभग सीमा रेखा के अंदर। और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं मोहम्मद अजहर। नए बल्लेबाज मैदान पर अमीर गड़ेकर, गोवन आइकॉन खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। ऑन हैट्रिक के ऊपर है मोहम्मद अजहर। अब तक इस प्रतियोगिता में 2 हैट्रिक हो चुके हैं सचिन पाठजी और अक्षय टावरे, इन्होंने वो विकेट हैट्रिक चटकाई है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले को लगने के बाद शरीर से टकराई। अच्छा ओवर, इस ओवर में रन नहीं बने, 21 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। 32 गेंदें अभी भी बाकी है और 27 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त 1 रन और खाते में जुड़ेगा, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड पर। ओ ये रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और एक बिंदी गेंद, ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर, जो कि तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त। 22 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। महेश भाईडकर अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर 22 रन स्कोरबोर्ड पर। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो आगरवाड़ा टीम को अगर ये रन बनाते हैं जल्दी जल्दी तो रन रेट में सुधार आ जाएगा। इस बार दिलखुश का एक स्ट्रोक देखने को मिला, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24, 24 रन 23, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 25 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी मैडी की, महेश भाईडकर की।
बड़ा हिट लगाने के लिए जा रहे थे आमिर गडेकर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। ओ इस बार हवा में खेला है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, खिलाड़ी के सामने गिरी गेंद। जब तक फील्ड किया जाता तब तक 2 रन पूरे हो गए हैं और इन 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोरबोर्ड पर। 27 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और इन 27 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की और आवश्यकता। ओ बड़ा शॉट हवा में, जरूर खिलाड़ी आते गेंद को रोकने के लिए, लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया और गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद लगा है चौका और चौके ने काम कर दिया। चौका टोटल पहुंचा 29 पर, 29 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट की नुकसान पर। ये शायद अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ और मिलेगी आने वाली गेंद पर फ्री हिट और ये सिंगल कुल मिलेंगे। ये 2 रन, 2 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा 31 रन पर। 31 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये आने वाली गेंद फ्री हिट की। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेला, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद है। खिलाड़ी वहां पर आएंगे, कैच छोटा जरूर, लेकिन पकड़ते भी तो कोई नहीं। डायरेक्ट हिट हो गई है और तब तक 2 रन पूरे हो गए हैं। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदों में अब मात्र 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओह ये देखिए तेज डालने की कोशिश करी है और गेंद लगभग निकली है। 22 के रूप में ये मिलेगा ये चौका। 4 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा है 37 रन स्कोरबोर्ड पर। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, आधे ओवरों का खेल समाप्त। अभी 24 गेंदों का खेल बाकी और 11 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव और गेंदबाजी के लिए युवा गेंदबाज अथर्व के पास गेंदबाजी का मोर्चा दिया गया है। 11 रनों की मात्र आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। सामने आमिर गडेकर। ओ बहुत बढ़िया, अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ 1 रन और खाते में अतिरिक्त रन के साथ टोटल 38 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 10 रन की मात्र आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार उठाकर खिलाया हवा में, जरूर खिलाड़ी गेंद के नीचे। ओ कैच यहां पर ड्रॉप हो गया है। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39। 9 रन की आवश्यकता। अथर्व को शायद पहली बार गेंदबाजी का मौका मिला है, विकेट भी उनके नाम हो सकता था।
ये काफी बार वाइड, वाइड का इशारा, वाइड के साथ टोटल 40 पर पहुंचा। ओ इस बार कामयाबी मिली पैडल स्विप द्वारा, गेंद निकलती हुई फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ टोटल पहुंचा 44। अब मात्र 4 रन की आवश्यकता है। ये शॉट पहले से ही खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाबी मिली है 5वें ओवर में। इस शॉट पर 4 रन अर्जित कर रहे हैं प्रजय डे। जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं। 1 रन खाते में जुड़ जाएगा। अंपायर का इशारा लेग 22 का आता हुआ 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 रन की मात्र आवश्यकता है। इस बार खेला निश्चित रूप से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ इस मैच को जीता है। और निश्चित रूप से का फैसला जरूर हो चुका है। क्वालिफाई तो हो चुके हैं लेकिन देखने वाली बात होगी रन रेट के ऊपर क्या होता है। फिलहाल और इस मैच का मैन ऑफ द मैच